Hello, hello, my dear students. Today in this lecture, we shall see the function of the secretary. As you know, our secretary assumed to be very important in our organization. For the smooth functioning of any organization, secretary have to do different type of many functions. नाउ विच आर दैट फंक्शंस, ऐसे कौन से काम है जो एक सेक्रेटरी को ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शन के लिए करना होता है, वो हम आज वन बाय वन इस वीडियो में देखेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी इज correspondence. First function is correspondence. Now, what is meant by correspondence? Correspondence means what? Correspondence means convey our message from one person to another. Convey our thoughts from one person to another. Now, one can convey his message from one person to another orally or maybe written. वो ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. बट बाय विच मीन्स, वो ऐसे कौन से मीन्स के थ्रू अपने मैसेज पहुंचा सकता है, ठीक है ना. या तो फिर वो ट्रेडिशनल मीन्स, फॉर एग्जांपल बाय राइटिंग द लेटर्स ही कैन कन्वे हिज मैसेज बाय, और या फिर मॉडर्न मीन्स, फॉर एग्जांपल डिजिटल मीन्स जिसे हम कहेंगे, या मॉडर्न मीन्स कहेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, टेलेक्स, टेलीफोन, या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल आर दिस, फेसबुक. These are the modern means by which any secretary can correspondence to any person. For example, top level management, third parties, employees, etc. ओके, बट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें यहाँ ये देखनी है कि हाउ सेक्रेटरी कन्वे हिज मैसेज. एक्चुअली वन थिंग ही हैव टू कीप इन हिज माइंड कि ही इज इम्प्रेसिंग ऑफ impression means expressing of the thought should be impressive. Conveys actually he have to convey his message to public, top level management, lower level management. Means he is doing his work as a representative of the company or the employer, so his representation should be impressive. So in the context of correspondence, he have to do first point is correspondence with the outsider, client, vendor, etc. Means first is outsider, client, vendor, etc. And in the second point can be, we say that he have to maintain inward and mail register also. उसको अपना इनवर्ड और मेल आउटवर्ड मेल रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है. बस इतना नहीं कि उसने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया, मेल्स भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिया, लेटर्स राइट कर दिए, लेटर्स आ गए, दैट्स इट. नो, ही हैव टू मेंटेन ऑफ ऑल दिस रिकॉर्ड ऑल्सो. Then third point is here in the context of the correspondence that he have to send, receive emails, fax, telex, messages, etc. जो भी उसको टाइम टू टाइम है, उसको वो डेली अपडेट्स रखने पड़ते हैं कि उसको कौन से ईमेल्स भेजने हैं. ही हैव टू चेक मेल्स प्रॉपरली, मैसेजेस प्रॉपरली. ये मतलब उसको हर टाइम अपने कौन से मेल्स आए हैं कंपनी के लिए, कौन से मेल्स कौन सी डेट को भेजने हैं, ये सब चीज़ें उसको ही हैव टू डू. Okay, then fourth point in the correspondence that he have to make a proper filing of the letters. उसको हर लेटर्स कौन से डेट को कौन सा किसके थ्रू आया है, इस सब चीज़ की प्रॉपर फाइलिंग करना ज़रूरी है. सो एक्चुअली फाइलिंग इज द मेन आर्ट, is assumed to be main art for the secretary, and he should be expert in that. Then fifth point to be noted is that he have to assist the employer in drafting the replies of the messages of the letter. जो भी मैसेज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू आए, अलग अलग पार्टीज के थ्रू आए हैं, आउटसाइड ऑफ द कंपनीज आए हैं, तो उनको और उनका रिप्लाई करने में अपने एम्प्लॉयर की, अपने ओनर की, अपने बीओडी की हेल्प करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी. सो ऑल दिस इज द about the correspondence. Second is office management. What is office management? Management means from the planning,
up to the execution, which function secretary have to do. All this comes under the office management. Okay, so in the context of office management, secretary have to do many official duties efficiently so that official work will go on smoothly. Otherwise, what will happen? Mess up can be there in office work. अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्पेसिफिक फंक्शन सेक्रेटरी हैव टू डू इन ऑफिस. तो पहला ये है कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस वर्क. देयर आर द लॉट ऑफ ऑफिस वर्क हैज़ बीन प्लान बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बीओडी. ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के और बीओडी के थ्रू प्लान किए जाते हैं. But main thing is here, the plan the work, organizing them properly and it should be implement there properly. मतलब ऐसा हुआ कि प्लानिंग आपने किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो भी कोई मतलब नहीं है. ऑर्गेनाइजिंग किया उसको लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, then also it is no use. Okay, so apart from this, he have to maintain file books etc. He know the filing is a very important art. If your filing of the document is perfect, then you would not face any difficulty for searching any document. Apart from this, secretary have to keep some document in his custody. फाइलिंग तो करना ही है लेकिन उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपने कस्टडी में भी रखना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट वन कैन नॉट टेक अ अनड्यू एडवांटेज. सो हम देखते हैं कि शादी में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो हर एक फंक्शंस, कोई भी शादी नहीं बल्कि कोई भी फंक्शंस रहा, कोई भी इम्पोर्टेंट अगर कोई फंक्शंस हमको परफॉर्म करना है तो उसका अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होता है तभी वो चीज़ पार पड़ती है, तभी वो चीज़ पूरी तरह कंप्लीट होती है. देन आवर थर्ड फंक्शन इज रिसेप्शन फंक्शन. रिसेप्शन फंक्शन देखो, एक्चुअली हम बड़ी बड़ी होटल्स में देखते हैं कि रिसेप्शन फंक्शन एज रिसेप्शनिस्ट होती है जो कि बहुत मीन्स अट्रैक्टिव बोलेंगे या बहुत प्रॉपर रिप्रेजेंटेड प्रॉपर ड्रेसअप में हमारे को अटेंड करते हैं. इन दिस सेक्रेटरी में रिसेप्शनिस्ट का जो एक बोलेंगे हम फीचर्स होना ही चाहिए. Secretary have to receive in the context of the receptional function. Secretary have to receive, attend the telephone calls, and second maybe have to fix the date and timing of the visitors with the employer. जो भी बाहर से visitors आते हैं तो उनका एम्प्लॉयर के लिए अपना डेट एंड टाइम फिक्स करना, ये उसका एक फंक्शन होता है. और अपने एक डेली डायरी मेंटेन करना. he have to maintain the daily diary for with his employer. Okay, this is the receptional function. Then fourth function is financial function. Financial function, secretaries seem to be link between a top level and lower level management. Secretary provides the information and give financial suggestion to the employer about the management, banks, governments, schemes etc. And on the other hand, what to do for the lower level management, secretary has to keep a watch on receipt and payment etc. कि कितनी रिसिप्ट्स हुए, कितनी पेमेंट्स हुए, इसका प्रॉपर सुपरविजन उसको हैव टू डू. ओके, ही हैव टू हैंडल ऑल द फाइनेंशियल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो उसका फाइनेंस जो हमने बाहर से कलेक्ट किया है, हमने पहले ही कहा है कि फाइनेंशियल मैटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर जो भी हमने फाइनेंस बाहर के रिसोर्स से कलेक्ट किया है अगर वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होएगा तो देयर विल बी नो यूज, देयर विल बी मीन्स नो एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन अटेन हिज गोल. Okay, now fifth point is arranging the meeting. As we know, the company have to keep different type of the decision for its functioning of the work, for the smooth functioning of the work. Company secretary have to arrange different type of the meeting. For example हो जाता है statutory meeting हो गया, जनरल मीटिंग हो गया, ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स उसको अटेंड करनी होती है विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विद द एम्प्लॉय, विद द और हो जाएगा कि विद द एम्प्लॉय हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, मीन्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़, BOD he have to
टेक्स द मीटिंग। अब मीटिंग बोलने के बाद ऐसे बहुत से फंक्शन है। एट दैट टाइम सेक्रेटरी हैव टू डू द मेनी फंक्शन एट द टाइम ऑफ द टेकिंग मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल है मेकिंग द नोटिस। सबसे पहले जब मीटिंग होती है तो उसको नोटिस प्रिपेयर करना पड़ता है, और वो भी प्रॉपर व्यवस्थित बिना कोई गलती किए होना चाहिए। देन किसके लिए मीटिंग अटेंड की जा रही है उन सभी को लेटर्स जाने चाहिए मीटिंग की प्रॉपर डेट टाइम्स पे, हाँ, ताकि वो उन तक के पहुंच जाए प्रॉपर। देन आफ्टर दैट विच पॉइंट हैव टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, सो उसको हम एजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा। तो वो चीज़ उसको प्रिपेयर करनी होती है, और वो चीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक के और जो मीटिंग्स में अटेंड होने वाले हैं उन तक के पहुंचाना होता है। आफ्टर दैट ही आफ्टर द मीटिंग हैव टू मेक द मिनट। ऐसे मिनट बनाने होते कि कौन सी पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ और कौन से पॉइंट्स पे डिसीजंस लिया गया, इस चीज़ का मिनट बनाना होता है, उसको हम मिनट कहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एट द टाइम ऑफ द अरेंजिंग द मीटिंग सेक्रेटरी हाउ टू डू मेनी फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैट्यूटरी फंक्शंस। हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि सेक्रेटरी शुड बी अपडेटेड विथ ईच एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड। उसे हर फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। आई मीन टू से इन दिस पॉइंट ही हैव टू डू ऑल स्टैट्यूटरी फंक्शन। अब स्टैट्यूटरी मीन्स क्या? रिलेटेड टू लॉ। Statutory means related to law, things which are related to law, with all those things which comes under any law। हर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो अदर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फॉर एग्जांपल कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सभी को स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉलो करनी होती है अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो। विथ ऑल स्टैट्यूटरी रूल्स, और if secretary is known with all statutory rules and regulation, company cannot indulge in the owner cannot indulge in any dispute, because secretary know the rules, and if he know the rules, then nothing problems can be created, and if any problem created then he can easily solve it। ओके सेक्रेटरी इसीलिए जब वो सीएस का, जब कोई सेक्रेटरी सीएस का डिग्री ले रहा होता है तब उसको ये सभी लॉ का नॉलेज दिया जाता है। आफ्टर दैट सेवेंथ फंक्शन इज असिस्टेंस। एक सेकेंड, वो our seventh function is assistance in formulating the policies। you know for secretary play very important vital role in decision making। he help BOD to take a decision and formulation of decisions, because he has all information of the organization। पहली बात ये, उसको ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा नॉलेज होता है, और ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। उसको सभी लॉज का भी नॉलेज होता है, सभी जो कॉम्पिटिशन्स मार्केट की सभी स्ट्रेटेजीज का पता होता है। ही नो ईच एंड एवरीथिंग, सो he play very vital role, play vital role in formulating policies and planning for the companies, for the employer, for at the time of formulating the strategy for the company। Okay, now next part is providing information। Our secretary is the chain between the top level and lower level management। whatever decision, जो भी decisions लिए जाते हैं, whatever decision policies are formulated, it is a function of the secretary to convey them to the lower level management। जो भी लिए जाते हैं उसे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसी शब्दों में, किस शब्दों में उसे पता होता है कि किस शब्दों में उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट में पहुंचाना है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड कन्वे, एक सेकेंड, on the other hand, all the reports or status of the different department of the organization to the top level management। and apart from this, if any shareholder, employee, bank or government department demands any information, it is a duty of the secretary to provide them relevant information।
अगर कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एम्प्लॉई, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी बैंक अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, अगर वो रिलेवेंट है, उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी. Then last one function is administration, as administrative function. As we know, along with the routine function, secretary have to do executive function also, which need special secretarial special skill. For example, leadership, motivation, organization, all this skill. Secretary is all rounder. Secretary helps in appointing employees, distribution of the work, supervision, training, promotion, etc. Only secretary can perform them very well. So all other administrative functions also have to secretary how to do. So these are the function of our secretary. Apart from this, many other function also secretary have to do. Okay. So I hope you all understand all this function.